Hello student, good morning. Your new chapter is solution and solution in the second chapter. Now what is the objective of this chapter? Why we should learn this chapter? Okay, why we should learn this chapter? First is to the if we study this chapter. After studying this chapter, we will be able to describe the formation of different type of solution, express the concentration of solution in the different units, state, and explain Henry's law and Raoult's law, distinguish between ideal and non-ideal solution, explain derivation of the real solutions from the Raoult's law, describe correlative properties of the solution and correlative correlate these with the molar masses of the solution, explain the abnormal colligative properties exhibited by some solution solute in the solution. तो बच्चों इस चैप्टर के थ्रू जो है हम पढ़ने के बाद अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन बनाना जान जाएंगे, किस तरह से सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंट यूनिट में, और हेनरी लॉ राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट जानेंगे और उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, और इसके अलावा डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे हम डिराइव करेंगे रियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से, वहाँ पे डेरिवेशन करना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किस तरह से इनका रिलेशन मोलर मास से होता है सॉल्यूट के। इसके अलावा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय द सम सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर को जानने के बाद जान पाएंगे। ओके, तो सॉल्यूशन हमारी लाइफ में तो डेली कुछ ना कुछ घर में सॉल्यूशन बनता है। साल्ट सॉल्यूशन बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया, जूस बन गए, these are the solution. Now you see here uh, normal life we really come across the pure substance. Most of these are the mixture containing two or more pure substance. Okay, properties of the broth is the mixture. It is a type of mixture. As you know that mixtures are two type. Mixtures are two type. Mixtures are of two types. One is homogeneous and one is heterogeneous solution. Okay, these are the two type of solution. Okay, homo and heterogeneous mixture. There are two type of the mixture. Homogeneous and hetero. You have learned in 11th class in first chapter. Heterogeneous.
homogeneous solutions are homogeneous mixture are those in which constituent particles are mixed such that they become equal to each other. You can't distinguish them, and by simple filtration you can separate. As you know that solution have two part, solute and solvent. Suppose you dissolve sugar in water. Water is solvent and sugar is solute. And when you mix sugar in water, then what happens? Sugar completely dissolve in the water, okay, and solution become transparent. You can't identify water molecule and solution solute molecule like sugar, okay, and you can't separate them by the simple filtration method or filtration method. Such type of solutions, such type of mixtures are homogeneous and called solution. Okay. Mostly we consider the liquid as a solution. In this chapter we will discuss about the solution. Okay, we will study the properties of solution, formation of solution, okay, like the vapor pressure and colligative properties. Okay, now we will start solution with the type of solution. Their solutions are the homogeneous mixture, as I have told you earlier. Mixture of two or more than two components. Okay, homogeneous mixtures means these are its composition and properties are uniform. Okay, properties are uniform throughout the mixture. Okay, and component present in the large component that present in a large quantity known as the solvent, and solvent determines the physical state in which the solution exists. Okay, and one more component is present in the solution in the small amount other than solvent, you can say, or solute. Okay, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका? दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि पूरा कंपोजिशन प्रॉपर्टी जो यूनिफॉर्म हो जाता है पूरे सॉल्यूशन मिक्सचर में, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाना सॉल्यूट सॉल्वेंट को मुश्किल होता है। अब जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। अब अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मीन्स अगर किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं, होमोजीनियस है, तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। हम इस चैप्टर में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ बाइनरी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। One is the gaseous solution. Gaseous solution means in this solution solvent is gas. Solvent is gas. And solute may be different. What? Suppose in here you can say, see, solute is gas, solvent is gas. Mixture of oxygen, nitrogen gases, air you can say, air may be example. Next one is the solute is liquid but solvent is gas. Example, chloroform mixed with the nitrogen. And solid and gas, you can take example camphor in nitrogen gas. These are the gaseous solution in which solvent is the gas. Solvent is the gas.
Okay. Next one is the liquid. It means solvent will be liquid. Solvent will be liquid. And solution and solute may be gas, liquid or solid. If gas is solute, solvent is liquid, oxygen dissolve in water, you can say. Liquid, ethanol dissolve in water, alcohol in water, you can say. Solid liquid, okay, here is the glucose dissolve in water, or you can say sugar dissolve in water, salt dissolve in water. These are the solid liquid solution. Next one is the solid solution. Now similarly here solvent is the solid, and solute is here gas, liquid and solid in all three stages. If gas is solute, then solution of hydrogen in palladium. Palladium is a metal. Liquid solid, amalgam of mercury with the sodium. Mercury is liquid and sodium is solid. Solid solution, copper dissolved in gold, you can say alloy. Alloy, you can say. Alloy is also example of solid solution. Okay. These are the different type of solution. Okay. Next we will see about the some expressing the concentration of solution, how we will express concentration. Okay, what is concentration? Concentration, how much amount of solute is dissolved in solvent. Okay, it may be in whatever way you mixed. Thus the concentration is the measurement of solute in solvent. You can say simple language. कंसंट्रेशन क्या है कि कितना हमने शुगर वाटर के अंदर मिलाया तो कितना सोल्यूशन बना है, शुगरी सोल्यूशन। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। तो अब जो हम 3 तरह के सोल्यूशन पढ़े तो उनको मेज़र करने के लिए उनका कंसंट्रेशन निकालेंगे। उनका क्या करेंगे? कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने कितना क्या मिलाया किस अमाउंट में तो किस तरह का सोल्यूशन बनाएंगे। क्वालिटेटिव वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, relatively very low quantity of solution. Dilute solution means solute is in very less amount. Concentrated solution means solute is in the large amount. Okay, solute in the large amount. Okay, हम अपनी लाइफ में भी इस तरह के सोल्यूशन को देखते हैं, मगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सोल्यूशन को लेता है। अगर सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर हमने ले लिया, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसके अंदर 1 स्पून शुगर डाल दिया, सिर्फ 1 स्पून शुगर डाला, ठीक है। तो वो 1 स्पून शुगर डाले तो वहाँ सोल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। लेकिन उसके अंदर हम 3-4 स्पून डाल दिया, 5 स्पून डाल दिया तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम अगर हमें डिस्क्राइब करना है कंसंट्रेशन की सॉल्वेंट के अंदर कितना है, क्या सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन की क्वांटिटेटिवली अगर स्टडी करनी है, क्वांटिटेटिव स्टडी, तो उस क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट इज द मास परसेंटेज। फर्स्ट वे इज द मास परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, mass percentage of component of the solution is defined as the what?
percentage mass percentage of the component is equal to mass of component in solution upon total mass. Okay, mass of a component in solution and total mass. कहने का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जानते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो अब अगर हमें मास परसेंट किसी कंपोनेंट का निकालना है, किसी एक कंपोनेंट का निकालना है, तो वो कितना हमने उस कंपोनेंट को सॉल्यूशन के अंदर मिलाया है और कितना टोटल सॉल्यूशन हमारा है। कहने का मतलब कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 10% ग्लूकोज इन वाटर, ओके, बाय मास, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Okay, what do you mean by this? It means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water, and the resulting solution is what? 100 gram solution. बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो जाती है, हम किसी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका बहुत है, जो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं मास परसेंटेज से। तो ये ज़्यादातर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस का। ओके, जो हमें कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाना होता है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन, उसके अंदर अगर देखा जाए तो 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन सोल्यूशन होता है। ठीक, अब इसका हम परसेंटेज के हिसाब से पता लगा लेंगे कितना ग्राम हो गया। इसका मतलब 3.62 ग्राम जो है कि 100 ग्राम के अंदर है हाइपोक्लोराइड। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहला जो तरीका हमारा है मास परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करने का, वो वेट बाय वेट, यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी एक कंपोनेंट का अगर हमें पता करना है मास परसेंटेज, तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मास बटे इसका अपॉन 12 टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इफ द सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय सपोज 10% ऑफ द ग्लूकोज दिया हुआ है बाय मास, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व है 90 ग्राम वाटर के अंदर, तब जाकर के 100 ग्राम सॉल्यूशन बना है। इसी तरह से अगर 20% कर दे, 25% कह दे, तो 25% सॉल्यूशन बाय मास का मतलब हो गया कि 25 ग्राम सॉल्यूट जो है 75 ग्राम वाटर में है, जिससे 100 ग्राम सॉल्यूशन बना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसका यूज इंडस्ट्रियल होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट तरीका हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट अगर हमें निकालना है, तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जो हमने मिक्स किया एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब 10% एल्कोहल सॉल्यूशन अगर बोला जाए तो 10 ml, सपोज 10 ml एल्कोहल मिक्स है 90 ml वाटर में, तब जाकर के 100 ml सॉल्यूशन बना। ओके, अब यहाँ से हम एग्जांपल देख लेते हैं, वही एग्जांपल दिया हुआ है। 10% सॉल्यूशन, 10% ethanol solution in water means that 10 ml of the ethanol is dissolved in water such that total volume of the solution become 100 ml. Means 90 ml is there water and 10 ml is ethanol and complete solution is 100 ml. Similarly here is 35% solution of ethylene glycol as a antifreeze, okay, used in the car in the cooling the engines,
ओके। इंजन्स को कूल करने के लिए जो बहुत हीट हो जाता है, एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हम यूज़ करते हैं ये जो कोल्ड कंट्रीज़ होती है। कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर ये इथाइलिन ग्लाइकॉल या अल्कोहल ना मिला है तो पेट्रोल भी जम जाएगा, या यू कैन से दैट कि जो रेडिएटर होता है, वाटर रेडिएटर, उस वाटर रेडिएटर के अंदर अगर हम इथेनॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में फ्रीज नहीं कर पाता है और इंजन गर्म नहीं होता है। कहने का मतलब जो हमारा रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर में हम वाटर भरे रहते हैं और जैसे एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, जब हम कार वगैरह चलाते हैं तो वो वाटर वाइपर फेंक जो है कि इंजन के ऊपर स्प्रे करता रहता है, फेंकता रहता है, जिससे कि वो हमारा जो इंजन है कार का वो हमेशा कूल पड़ा रहता है। अगर हम जब ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, कंट्रीज़ में, कोल्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है तो जो हमारा वाटर रेडिएटर के अंदर वो फ्रीज हो सकता है, फिर हमारे जो कार का इंजन है वो गर्म भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एंटी फ्रीज मिला देने से उसका जो है कि फ्रीजिंग पॉइंट और लो हो जाता है। तो अब यहाँ 35% का मतलब है कि 35 ml एथिलीन ग्लाइकॉल को 100 ml सोल्यूशन के अंदर मिलाया गया है। ठीक है, यानी वहाँ पे रिमेनिंग जो है 65% वाटर है। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, ये एक दूसरी यूनिट है, मेडिसिन में ज़्यादातर, फार्मेसी में इसका यूज किया जाता है। ओके, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन द 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितना हमने मिक्स किया है वो होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट पर मिलियन। नाम सजेस्ट कर रहा है कि 1 मिलियन के अंदर कितना मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि ट्रेस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द ट्रेस क्वांटिटीज। इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस concentration in the part per million. Okay, part per million, number of parts of the components and total number of parts of all components into 10 to power 6. ओके, एक कंपोनेंट का कितना पार्ट है और टोटल कंपोनेंट्स का जो पार्ट है उसे डिवाइड कर देंगे और 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या होता है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि इन केस ऑफ परसेंटेज concentration in part per million can also be expressed as a mass to mass। ये मास बाई मास का भी रिलेशन हो सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का रिलेशन हो सकता है, मास टू वॉल्यूम का भी रिलेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम देखते हैं कि 1 लीटर सी वाटर है जिसका वेट 1030 ग्राम है, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसके अंदर 6 × 10⁻³ ग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। सच कंसेंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द एज द 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम एंड दिस मे बी रिटन एज ppm ऑफ द सी वाटर। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर एटमॉस्फेयर अगर एक्सप्रेस करना होता है तो हम माइक्रोग्राम पर ml या ppm में करते हैं। तो यानी पोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन used symbol for the mole fraction is x. We use x
how much fraction you know about the fraction. Okay, what is fraction? As you know that there are two components in binary mixture. So suppose we are taking water and sugar solution. Okay, then we have to calculate the mole fraction of sugar. Then you should have knowledge of moles. What is moles? Then you can calculate. Moles is the what? Weight of solute upon molar mass. Now you have to calculate the mole fraction of sugar. Then the number of moles of sugar and total number of moles of all components means water and sugar. मीन मोल फ्रैक्शन अगर हमें एक कंपोनेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका हमें निकालना है और टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यहाँ पे हम रख देंगे. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. एग्जांपल क्या है? बाइनरी मिक्सचर. यहाँ पे अगर हम देखें बाइनरी मिक्सचर, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए and B are Na and B, okay, respectively. So then the mole fraction of A will be what? XA is equal to Na and Na plus NB. Okay. यहाँ पे solution containing one number of the components. Suppose यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट अगर इस तरह से मिले हैं तो इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे. अब किसी भी सॉल्यूशन का जो सम ऑफ द हम जो देखते हैं आप ऑल कंपोनेंट फ्रैक्शन इज यूनिटी. कितने भी अगर कंपोनेंट मिले हो सबका मोल फ्रैक्शन अगर टोटल कर देंगे तो 1 ही आएगा. 2 कंपोनेंट मिले हो चाहे 10 कंपोनेंट मिले हो, सारे का अगर हम मोल फ्रैक्शन प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी. तो अगर हमें सपोज 2 कंपोनेंट सोल्यूशन के अंदर हैं तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें पता है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अदर का कंपोनेंट का हमें पता लग जाएगा. अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हम अच्छे से इसको कोरिलेट कर सकते हैं. एंड यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द गैसियस मिक्सचर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. एज यू आर seeing here binary mixture, mole fraction of A is the Na upon Na plus Nb, where Na is the number of moles of A and Nb is the number of moles of B. Here is the total number of moles of all components and here is the mole fraction of number of mole of A. इसी तरह से हम B का भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे एक्स भी कर देंगे, यहाँ पे एन भी कर देंगे और बाकी नीचे वही रहेगा. इस तरह से अगर हम सपोज आई मोल्स टाइम्स ऑफ कंपोनेंट्स मिला दिए तो ये टोटल हमारा इतना ही आएगा कितने भी कंपोनेंट मिला दें. अब हम कितने भी कंपोनेंट मिला दें तो सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो इक्वल टू 1 आएगा. अब इस मोल फ्रैक्शन बहुत यूज़फुल क्वांटिटी है, इस यूनिट है जिसका हम यूज़ जो है कि फिजिकल क्वांटिटी को सोल्यूशन से जोड़ने में कर सकते हैं. वेपर प्रेशर जैसे है उसको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से जोड़ सकते हैं और गैसियस मिक्सचर को कैलकुलेट करने के लिए भी जोड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. एक यहाँ पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लगे याद. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of ethylene glycol in solution containing 20% of C2H6O2 by mass. Formula of the ethylene glycol.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज गिवन हियर। हमें एक मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सोल्यूशन में से, जिसके अंदर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास है। तो पहले ये तो देख लेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है। अब यहाँ मान लिया हमने कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, पूरा 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम वाटर है, तब जा कर के 100 हुआ। तो अब यहाँ से मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। 12 इंटू 2 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 16 इंटू 2 इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। मोल्स ऑफ C2H6 ओके, H2 20 ग्राम अपॉन 62 ग्राम पर मोल. Here is the number of moles of ethylene glycol. Similarly, you can calculate the moles of water also. 80 upon this one is here you can see 80 gram of water. 80 upon 18, this much is the number of moles of water. Now, mole fraction of the ethylene glycol, moles of C2H6O2 and moles of the C2H6 प्लस मोल्स ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे टोटल मोल हो गया और यहाँ पे मोल हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। सॉल्व करने पे मोल फ्रैक्शन इतना आ गया। अब अगर हमें वाटर का निकालना है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली, 1 माइनस दिस मच कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वाटर। तो न्यूमेरिकल को देख लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आई होप नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोलैरिटी पे। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution. Okay, this much. Now molarity you can write here, moles of solute upon volume of solution in liter. Okay, यहाँ पे 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 m. Capital M is the symbol of molarity, or you can show unit also. इसका मतलब क्या हुआ? what do you mean by this? Means 2.5 mole NaOH is dissolved in the 1 liter solution. 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter of solution. ओके, समझ में आ गई होगी कि कितना मोल सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर मिला हुआ है, उसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब 0.25 मोल पर लीटर, या इसी को हम 0.25 m कैपिटल M से दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 0.25 मोल NaOH डिजॉल्व है 1 लीटर के अंदर। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन
containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. ओके, हमें यहाँ मोलरिटी कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की जिसके अंदर 5 ग्राम NaOH है, डिज़ोल्व है 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो पहला काम हम ये करेंगे कि नंबर ऑफ मोल NaOH का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, केवल 5 ग्राम दिया है, वेट दिया है। तो वेट अपान मोलर मास, ओके, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, तो 5/40 मीन्स 0.125 मोल आ गया नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 450 ml डिवाइडेड बाई 1000 ml पर लीटर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0.125 इंटू 1000/250, तो हमारा मोल आ गया दिस मच 0.25 m। अब इसे हम चाहे तो मोल पर लीटर लिख दें, चाहे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दें। ओके, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मोलरिटी पे ध्यान से देख लें और इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आई थिंक हो गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी। हियर इज द वर्ड मोलैलिटी, हियर इज 2L. In molarity there was 1L. How you will distinguish these two quantity? You have to see the spelling of the both. मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक L का डिफरेंस है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी देखिए बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो मोलैलिटी क्या होती है, स्मॉल m से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के हैं डिज़ोल्व, उसे हम कहेंगे क्या, सॉल्यूट पर, उसी को कहेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू यहाँ पे हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सपोज यहाँ पे दिया है 1 मोल पर केजी और 1 स्मॉल एन दिया हुआ इस ऑफ KCl सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल मतलब हो गया 1 मोल जो है कि KCl डिजॉल्व है 1 kg वाटर के अंदर। ओके, इस मेथड से हम जो यहाँ पे कुछ मेरिट भी है कुछ डीमेरिट भी है। मास परसेंटेज ppm में हम लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, मोलैलिटी लेते हैं, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। बहुत पूछा जाता है, ये लाइन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मास परसेंट ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, केवल वेयरएज मोलैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बट मास डजेंट। बाकी सब में क्या है, मोलैरिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में क्या है, मास बाय मास का रिलेशन, एक तरह से वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है, तो इसलिए बाकी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। लेकिन मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम इन लीटर हम लेते हैं तो वो जो है कंसीडर किया जाएगा, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ओके, क्यों पड़ता है, वॉल्यूम के कारण, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड। अब यहाँ पे एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब ये बेंजीन हमारा क्या सॉल्वेंट है, हमेशा याद रखिए कि सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दी है, देखिए बहुत कम है, और यहाँ देखिए बेंजीन की वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे, इस इथेनोइक एसिड का मोलर मास निकालेंगे, और इथेनोइक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल आता है, और मोल्स ऑफ
जो है कि यहाँ पे देखिए इथेनोइक एसिड देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना ग्राम है इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम है यहाँ पे सोल्यूशन क्वेश्चन के हिसाब से। अब मोलर मास हमने यहाँ पे निकाल लिया, मोलर मास हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.0417 मोल, ओके। अब वॉल्यूम बेंजीन का मास हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 75 ग्राम दिया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 75 इंटू 10⁻³ kg। अब इस फार्मूले में रख देंगे मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, वेट ऑफ बेंजीन इन kg, ओके। तो हमारा यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल दिए हैं उन्हें एनसीईआरटी में इंटेक्स में कर लीजिए। कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनके हम हिंट दे देते हैं, उसे सॉल्व करना है। कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride. If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, मास परसेंटेज अब निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें किसका निकालना है? बेंजीन का निकालना है, तो पहले बेंजीन का मास रखेंगे, ओके। उसके बाद हम जो है कि बेंजीन का मास और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास टोटल कर लेंगे, इंटू 100 कर देंगे मास परसेंटेज के हिसाब से। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का रख लेंगे और फिर दोनों के मास को टोटल कर लेंगे, ओके। तो हमें यहाँ से मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ जाएगा। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है तो पहले 30% का मतलब निकालेंगे कि 30 ग्राम सल्यूट है, 70 ग्राम बेंजीन है, सॉल्वेंट है, ओके, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो हमें सबका मास पता लग जाएगा, सबका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन के फार्मूले में रख देंगे। इसी तरह से यहाँ मोलैरिटी का फार्मूला सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है और ये फार्मूला दिया हुआ है, तो इसका मोलर मास निकाल करके इसे डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम दिया ही है, मोलैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे डाइल्यूशन किया गया है तो यहाँ पे हम फार्मूला चाहें तो ये लगा सकते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2 से भी इसको लगा सकते हैं, देखें लगा करके आता है, ओके, आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ यूरिया दिया हुआ है NH2CONH2 रिक्वायर्ड टू मेक इन द 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो सिंपल सा है, मोलैलिटी दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल में वेट अपॉन मोलर मास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे हम पहला काम क्या करेंगे, मोलैरिटी रखेंगे स्मॉल m, ओके, स्मॉल m। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W से यहाँ पे लिख देंगे, ये फार्मूला हो गया। उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n इक्वल टू निकाल लेना है, सॉरी पहले हम m निकालेंगे, m निकालने के बाद यहाँ से n पे आ जाएंगे, ओके। m दिया हुआ हमारा, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एन इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एम मोलैलिटी इंटू कैपिटल डब्लू, ओके, कैपिटल डब्लू, ओके। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल आने के बाद क्या करेंगे, एन इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास, दिस वन इज द मोलर मास। तो हमें क्या निकालना था, यूरिया का वेट निकालना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा W इक्वल टू एन इंटू एम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला काम फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से, फिर सेकेंड काम हमें ये करना है, यहाँ से हमें वेट निकालना है। ऐसे ही सारा हम न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लीजिएगा, जो नहीं आएगा तो हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।